بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے کہ وسط ایشیا میں ایک بار پھر ایک نئی گریٹ گیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ امریکہ، مغربی ممالک اور روس یوکرین کے معاملے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان اس نئی صورتحال کے اندر اپنے مفادات کے حوالے سے خارجہ پالیسی تشکیل دینے پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ روس ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان جیو اسٹریٹجیکلی اور اس کے ساتھ ساتھ جیو اکنامکلی اس خطے کے میں جو پوٹینشل ہے اسے زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہی چین کی بھی اقتصادی پالیسی کا حصہ ہے، جسے ہم BRI کی شکل میں یا سی پیک کی شکل میں اس خطے میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور مغربی ممالک روس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ روس کو شدید تحفظات ہیں، اور مسلسل روس کہہ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے امریکہ اور مغربی ممالک کا اس خطے میں براہ راست مداخلت کا قدم تصور کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس خطے میں اثر و رسوخ کی بھی جنگ اس کو کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں جو سرمئی اولمپکس ہوئے اس میں ان ممالک نے ظاہر ہے کہ ان اولمپکس کا بائیکاٹ کیا، لیکن پاکستان جو کہ ظاہر ہے ایک نیوکلیر اسلامی طاقت ہے، پاکستان نے اور ظاہر ایک دوسری بڑی طاقت روس نے چین کی اس معاملے میں بھرپور حمایت بھی کی، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی چین میں موجود تھے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں پر موجود تھے، جس سے لگتا ہے کہ اب اس خطے میں ظاہر ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کرنے کے بعد جو اثر رسوخ تھا وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ علاقے تو وہ چھوڑ گئے، لیکن اثر رسوخ کوئی بھی ملک اس خطے میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس سمت میں جانا ہوگا، یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اس پر پاکستانی حکومت مرکوز ہے۔ آج اسی معاملے پر ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفارتکار جناب نجم الثاقب۔ بہت بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سابق سفیر ہی جناب شاہد کیانی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ نجم الثاقب صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں امریکہ چین، روس امریکہ، پاکستان بھارت، ظاہر ہے کہ اس خطے میں بہرحال ایک ٹینشن تو موجود ہے۔ افغانستان کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو وہاں پر تو ظاہر ہے ایک حکومت چلی گئی، طالبان کی حکومت آ گئی، اس کی ریکگنیشن کا بھی معاملہ ہے، لیکن یہ ساری جو ایک صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جاوید آپ کا شکریہ، پی ٹی وی کا شکریہ، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس میں آپ نے امبیسڈر کیانی کو اور مجھے دعوت دی ہے۔ دیکھیے، آپ نے صرف 1.5 منٹ کے اپنے انٹرو میں وہ ساری باتیں کر دی ہیں جو اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہیں، اور یہ سارے مسائل لاحق ہیں۔ پہلے تو ایک فکرہ بولوں گا کہ یہ سارا کھیل جو ہے صدیوں سے جو چل رہا ہے، جو آج تک چل رہا ہے، وہ 2 چیزوں کا کھیل ہے۔ پہلی ہے طاقت اور دوسری ہے دولت۔ اب اگر آپ اس میں دیکھیں، آپ نے کہا کہ جی روس جو ہے وہ یوکرین کے معاملے میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ بتانا ہے پوری دنیا کو، خاص طور پہ اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے ان کو، کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، ہم میں اندرونی انتشار ہے، تو امریکہ وانٹس ٹو ٹیل دی ورلڈ دیٹ وی آر بیک۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ اس کا کانٹیکسٹ سامنے رکھنا ہے کہ امریکہ کی اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے اس میں وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا مانے کہ وہ سپر پاور ہے، اور کوئی چیز کسی جگہ پہ بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو رہی ہے، چونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کا ہمسایہ ہے، اور دنیا کے تمام ممالک پہ اس کا اثر و رسوخ قائم رہنا چاہیے، لہٰذا اس میں اگر یوکرین کی بات آتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ روس کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر گلوبل گورننس کی بات آتی ہے، ساؤتھ چائنا سی کی بات آتی ہے، تائیوان کی بات آتی ہے، یا یہ کولڈ وار کی بات آتی ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے میرے خیال میں، تو اس میں ہمیں امریکہ نظر آ رہا ہے چائنا کے سامنے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور کوئی طاقت ہے ایسی جو کہ دنیا میں
امریکن پاور کو جو ہے وہ چیلنج کر سکے. لہٰذا امریکہ کا بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو اپنی کھوئی ہوئی وہ ریپوٹیشن واپس چاہیے سب سے پہلے. یہ تو ہو گیا ایک اس کا پہلو. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی یوکرین کی، اس میں بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ اس میں یعنی ان کا نیٹو کا بننا. آپ اگر اس کے پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر 4-5-6 سال کے بعد دنیا کو ایک جنگ تھوپ دی جاتی ہے، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیفنس پروڈکشن ہے امریکہ کی خاص طور پہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ 20 سال ٹریلینز آف ڈالرز لگائے گئے افغانستان میں، تو طالبان کو نتیجہ کیا نکالا انہوں نے کہ طالبان سے حکومت لی اور طالبان کو ہی واپس کر کے وہ چلے گئے. تو یہ وہ ریئل پالیٹک ہے جس میں کہ آپ کی جیو اکنامکس بھی آتی ہے، آپ کی جیو پالیٹکس آتی ہے، یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان کو اور خاص طور پہ یہ جو دورہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ آپ کا میں جو آپ کے ناظرین ہیں لاکھوں، ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کلیشے ہے. نارملی بتایا جاتا ہے جی بڑا یادگار، بڑا تاریخی دورہ، لینڈ مارک وزٹ ہے. یہ واقعتاً ایک لینڈ مارک وزٹ ہوگا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. جو ٹائمنگ ہے اس وقت، جو ہم نے اس وقت دنیا کی صورتحال دیکھی ہے، ابھی تو میں نے مڈل ایسٹ کا نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا مسائل ہیں، اور ایران نے یہ جو خیبر شکن ایک سرفیس ٹو سرفیس میزائل بنایا ہے، اور اسرائیل کی صورتحال اس وقت کیا ہے. اس سارے میں جبکہ افغانستان کا مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، طالبان کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، اور ہمیں اپنی سٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ افغانستان میں ہوگی تو ہمیں ہوگی. اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کا یہ دورہ جو ہے بہت اہم ہے. میری دعا ہے کہ یہ دورہ ہو جائے، کیونکہ 2012-13 میں بھی میں اس وقت فارن آفس میں تھا جب یہ صدر پوٹن کا ہوا، اور آخری وقت میں انہوں نے یعنی انکار کر دیا، کچھ مسائل پیش آ گئے. اگر یہ دورہ ہو جاتا ہے جاوید، اور اگر ولادیمیر پوٹن ہمارے پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو نہ صرف ٹریڈ اور اکنامکس کی بات ہوگی، ہمیں نئی منڈیاں چاہیے، بلکہ خطے کی صورتحال، اس میں مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ، اس میں افغانستان ایسٹرن ویسٹرن بارڈر، اور اس میں ہماری خواہش ہوگی کہ اس وقت جب کہ امریکہ ہمیں اتنا درخور اتنا نہیں سمجھ رہا، اس میں ہمیں رشیا کی مدد آئے. اور اس وقت کی آخری بات کہ روس اور پاکستان کو، ان دونوں کو اس وقت دوستوں کی ضرورت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک لینڈ مارک وزٹ ہوگا کہ اس میں شاید پاکستان کو ایک نیا دوست مل جائے اور روس کو بھی شاید ایک اور دوست مل جائے. ٹھیک ہے شاہد کیانی صاحب، یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہوگی کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ظاہر ہے وہاں جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پاکستان دورہ کرنے کا اعلان کر لیتے ہیں، یا پھر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی. کیونکہ اس وقت جو امریکی اخبارات ہیں وہ بھی اس دورے کے حوالے سے بہت کچھ لکھ رہے ہیں. بڑی ان کی نظر ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ تو اس نے ایک ٹینشن بنائی ہوئی ہے روس کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ صدر پوٹن جو ہیں وہاں پر جو نظام حکومت ہے اس کے اندر صدر پوٹن کا ہی لاسٹ ورڈ ہوتا ہے. اگر وہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جا رہے ہیں روس، اور وہ انہیں کنونس کر لیتے ہیں کہ جی آپ کی وزٹ جو لانگ، ہم بڑی عرصے دراز سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور امبیسڈر نجم صاحب نے اس کے متعلق ذکر بھی کیا ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ جو آپ کے تعلقات ہیں روس کے ساتھ، وہ پھر اس کی انلارجمنٹ سب سے پہلے سگنیفیکنٹ انلارجمنٹ ہوگی. اس کے اندر پھر ڈیفنس ریلیشنز ہیں، ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں، ٹریڈ ریلیشنز ہیں، وہ ایک ویزیبل امپرومنٹ ہوگی. اب جب یہ جا رہے ہیں، اس میں ایک بڑی جو مطلب پبلکلی سب لوگوں کو بتایا بھی گیا ہے کہ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن ہے، وہ بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ کراچی سے شروع ہوگی اور قصور تک جائے گی، اور وہ 1000 کلومیٹر پائپ لائن ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس میں ایک ویزیبل امپرومنٹ ہو، پیش رفت ہو. اس کے اندر کافی عرصے سے یہ رکا ہوا ہے. اس کے اندر نیچرلی سپیکنگ پاکستان کو اکنامک اسسٹنس بھی چاہیے، روسی بینک سے بھی ہم پیسے لیں گے. ایک کے اوپر مسائل بنے میں ہیں کہ امریکہ نے
سینکشنز لگائے ہوئے ہیں روس کے اوپر، وہ یوکرین کی ایشو، وہ کرائمیا کی ایشو کی وجہ سے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پر بھی پیش رفت ہو، جہاں پر اکنامک ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں، لیکن ایک بڑی ضروری ہے کہ یہ جو یوکرین کے اوپر امریکہ اور روس کے اندر جو اتنا تناؤ ہے، حالانکہ بات چیت بھی ہوئی ہے صدر پوٹین کی صدر بائیڈن کے ساتھ، کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو تناؤ ہے، یہ جو ایک ایشو ہے، اس سے ہم دور رہیں، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان، دیکھیں نا، اس میں ایک ایسے ایشوز کھڑے کر دیے گئے ہیں. امریکہ یہ کہتا ہے جی یوکرین جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ نیٹو میں کا ممبر بنے. دوسری طرف روس کا ایک اپنا ایک موقف ہے، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی جان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بارڈر کے ساتھ کس قسم کے کوئی ایسی غیر ملکی فوجیں وہاں پر نہ آئیں، کیونکہ اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ تھریٹنڈ ہوتی ہے. یہ دونوں کا اپنا موقف ہے، اور اس کے اندر کوئی کامنالٹی نظر نہیں آ رہی، لیکن ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنگ ہوگی. ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ، ابھی جو صدر پوٹین آئے تھے وہ اولمپکس میں، جہاں پر ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے تھے، وہاں پر جو کمیونیکے ایشو ہوا روس اور چین کے درمیان، وہ بڑا سخت تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی باہر کی جو فورسز ہیں، باہر کی جو ظاہر امریکہ کی طرف تھا اور ویسٹرن کنٹریز، وہ اس چیز سے دور رہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو وزٹ ہے صدر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وہ ٹوٹل فوکسڈ ہو بائیلیٹرل ریلیشن میں، لیکن کسی قسم کی ایسی کمیونیکے کے اندر ہمارا نام ہم دور رہیں اس تناؤ میں. یہ جو روس اور امریکہ کے درمیان ہے وہ فوکس کریں. اور یہ بڑی وزٹ امپورٹنٹ ہے، 23 سال کے بعد وزٹ ہو رہی ہے. یہ اس سے آپ دیکھیں کہ روس عرصہ دراز سے چاہتا بھی تھا کہ پاکستان تعلقات بہتر ہوں. تاشکند کے اندر بھی دیکھیں کہ کتنا اچھا انہوں نے رول ادا کیا. بیچ میں پھر کولڈ وار آ گئی، کولڈ وار کے اندر مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے، اور اب ہم اس اور پھر لیکن ان کئی سالوں میں بڑے ہمارے تعلقات میں ایک ویزیبل ڈفرنس بھی آیا. دیکھیں سب سے میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وزٹ ہوئی پچھلے سال وزیر خارجہ روس کی، وہ تو ہوتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی فوجیں یہاں بھیجی. جو مشقیں ہوئی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ کوئی اس قسم کی جو ملک ہے وہ اپنی فوجیں بھیجنے کا مطلب ایک بہت ویزیبل ڈفرنس ڈالنا ہوتا ہے ریلیشن شپ میں. وہ آئے اور انہوں نے یہ، حالانکہ ہندوستان نے بڑی اس کی تنقید بھی کی، وہ فوجیں اپنی بھیجی، یہاں مشقیں ہوئی، 2 دفعہ مشقیں ہو چکی ہیں. یہ دکھانا چاہتے ہیں، روس دکھانا چاہتا ہے دنیا کو بھی، انڈیا کو بھی، پاکستان کو بھی، کہ ہم آپ کے ساتھ بہت ساری ایشوز کے ساتھ کھڑے میں ہیں. اور ایک چیز اور، افغانستان اور دہشت گردی، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اندر روس کو بھی بڑے مسئلے مسائل رہے ہیں، چیچنیا میں، ان دوسروں جگہوں میں، اور انسٹیبل افغانستان پاکستان کے لیے بھی بڑا مسئلہ مسائل ہے کھڑے کیے میں، اور روس کے لیے بھی کھڑے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وزٹ میں جہاں اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلیشنز بھی ہوگا، اس ایشو کے اوپر بھی بہت ڈسکشن ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب یہ واپس آتے ہیں عمران خان صاحب، ہم یہ سمجھیں گے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ انلارج ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ نجم ثاقب صاحب، 90 کی دہائی میں بھی ظاہر ہے یہ فیصلہ تو ہو ہی چکا تھا آلموسٹ کہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری ہونی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں اتنا کام نہیں ہو سکا. لیکن یہ جس طرف ایمبیسڈر کیانی صاحب نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ اب ظاہر ہے پاکستان اور روس کی مشترکہ مشقیں بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. تو بائی لیٹرلی ہمیں فوکس ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں جو اقتصادی فوائد ہیں خطے میں، اور پھر پرامن افغانستان کے نتیجے میں جو فائدہ روس کو ہونا ہے، جو پاکستان کو ہونا ہے، اس پر ہمیں مرکوز رہنا چاہیے. جی بالکل. اس میں دیکھیے وزٹس تو ہوتے رہتے ہیں، ٹیکنیکلی سپیکنگ اس میں یہ وزٹ جو ہے یہ ایک آفیشیل بائی لیٹرل وزٹ ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کسی میٹنگ میں جانے کے لیے کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے جی کہ وہ وہاں گئے، لیکن ہم اس کو اسٹرکٹلی ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بائی لیٹرل وزٹ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے پہلا بائی لیٹرل وزٹ جو ہے وہ تقریباً 23 سال پہلے ہوا تھا. بیچ میں ہمارے
सदर ने भी किया, बीच में एक दो प्राइम मिनिस्टर भी हमारे गए, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दो तरफा सरकारी यानी ऑफिशियल विजिट है। और ये आप जानते हैं कि ये दौरा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसमें बाकायदा तौर पे व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उन्होंने दावत दी है और उस दावत पे जा रहे हैं। इस किस्म का जो विजिट है ये बड़ा वाइड रेंज्ड होता है, इसमें सारे के सारे जो है ना, जो एजेंडा आइटम्स होते हैं वो पहले से ही वर्किंग लेवल पे दोनों फॉरेन ऑफिसेज मिलके और स्टेक होल्डर्स मिलके देखते हैं कि भाई किन किन जगहों पे हमने कौन सा MOU साइन करना है, किस जगह पे एग्रीमेंट करना है, किन जगहों पे हमारे मसाइल हैं, अगर आपकी एक्सपैट कम्युनिटी है उसका क्या करना है, ट्रेड और इकोनॉमिक में क्या करना है, और पॉलिटिकल और जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें कहां कहां पे लूप होल्स हैं, उनको कैसे फिल करना है, और उसके बाद ये है कि आगे का क्या देखना है। फिर उसमें एक पूरा एजेंडा आइटम होता है कि खित्ते की सूरत हाल पे दोनों ममालिक के जो ये प्राइम मिनिस्टर या सदूर हैं वो मिल के बैठ के देखते हैं कि अब क्या किया जाए। ये तो हो गया इस ऑफिशियल विजिट का, मैंने आपको बताया। अब इसमें मेरे और आपके प्राइम मिनिस्टर अगर वहां से 3-4 चीजें लेके आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत कामयाब विजिट होगा। पहला ये है कि अफगानिस्तान पे वो जो 15 अगस्त के बाद हमें बताया गया था कि अगर अमेरिका ने या यूरोप ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया तो एक रीजनल कंसेंसस डेवलप होगा जिसमें कि रूस था, चीन था, तुर्की था, ईरान था, पाकिस्तान था और एक दो जो सेंट्रल एशियन कंटिगुअस स्टेट्स हैं वो होंगी। अगर तो इस सिलसिले में रूस की तरफ से कोई इशारा मिलता है कि जी तालिबान के साथ करना क्या है और ये करना है, तो ये होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजिट का सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल खित्ते की सूरत हाल जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल डोमेन में। दूसरा, जिस तरह की अभी एक प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ, एक दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक डोमेन में, उनमें अगर जो रुकावटें पेश आ रही हैं वो दूर हो गई, काम सिलसिला शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। तीसरा आपका ट्रेड का एलिमेंट है, हमें मंडियां चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से हमारी सबसे ज्यादा जो बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो अमेरिका है। अच्छा, अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात चूंकि ठंडे पड़ गए हैं या ठंडे पड़ रहे हैं तो हमें और ऐसे ममालिक की जरूरत है जहां पे हमारी एक्सपोर्ट्स जा सके, वो डाइवर्सिफाई हो सके। तो ये हो गया उसका तीसरा। चौथा और सबसे अहम मेरे नजदीक ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन ये दोनों बैठ के ये फैसला करते हैं कि आइंदा यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है वो ये होगी कि दोनों ममालिक मिलके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एरिना में और इकोनॉमिक और ट्रेड डोमेन में मिलके काम करेंगे, कुछ इस तरह से कि दोनों ममालिक की विन विन सिचुएशन हो, कि दोनों को इसमें फायदा हो। एक बात बड़ा जरूरी है यहां कहना, जो आप पहले डिस्कशन में कर रहे थे, इतना अरसा जावेद गुजर गया, इतनी मुद्दत गुजर गई, रूस और चीन को कोई इकट्ठा नहीं कर सका। रूस और चीन जो है वो अलहदा ही रहे। लेकिन मैं जब पिछले 2-3 साल की ये इंटरनेशनल रिलेशंस की सूरत हाल देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका के सामने इस वक्त सिर्फ रशिया नहीं है, इस वक्त चाइना नहीं है, बल्कि ये दोनों जायंट्स जो हैं ये इकट्ठे सामने हैं। और उसकी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी दलील क्या बनी। ब्रसल्स में जब जो बाइडेन जाते हैं और जाके अपने तमाम नेटो के मेंबरान से कहते हैं कि कंटेन चाइना, तो वो खुल के उन्होंने ऐलान किया कि हमने चाइना की ट्रेड वॉर और चाइना की जो है वो प्रोग्रेस जो हो रही है उसको हमने कंटेन करना है। साथ ही उन्होंने रूस को भी तंबीह की, साथ ही उन्होंने रूस को भी बताया कि तुम्हारी तरफ भी हमारी नजर है। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि चीन और रूस के मफादात एज फार एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न वो अमेरिका के सामने आ गए। लिहाजा अमेरिका को सिर्फ एक ताकत का सामना इस वक्त नहीं है, इस वक्त उसके सामने दो ताकतें मौजूद हैं और दोनों के ऑब्जेक्टिव्स किसी तरह से मिल गए हैं, विच आर एंटी यूएसए। ठीक, कियानी साहब, ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से इस वक्त जो एक सिचुएशन है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और फिर ये जो जिस तरफ एम्बेसडर नजम साकिब साहब ने भी इशारा किया
कुछ बाइडन इंतज़ामिया को भी मसाइल का सामना है अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से, इस वजह से भी एक प्रेशर है और उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए मामला जो है वो यूक्रेन और रूस के हवाले से भी ज़ाहिर है कशीदगी में है और चीन के हवाले से भी। देखें, बात सुने, हमें ये बहुत अहम है। वो ठीक है, सफ़ीर एम्बेसडर नजम साहब ने बात की पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में, क्योंकि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप अमेरिका के साथ काफ़ी मजबूत है। ठीक है, पॉलिटिकल ताल्लुकात हमारे उतने अच्छे नहीं हैं जो होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वो अमेरिकन सफ़ीर जो आ रहे हैं, मेरे ख्याल है अगले हफ्ते तक, पहले वीक ऑफ मार्च में आएंगे, कुछ पेशरफ्त नजर आएगी आपको पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। ये हो नहीं सकता। यहाँ से हमारे सफ़ीर मसूद खान साहब अमेरिका जा रहे हैं। ये नहीं होता कि दोनों सफ़ीरों के आने से कोई बहुत विजिबल इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि फिर जो आपका पैगाम है वो हाईएस्ट लेवल तक जाता है। ये बिल्कुल इसमें बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त दोनों जगह इस पर दोनों मुल्कों के दरमियान में छोटा मोटा तनाव भी है, मसले मसाइल भी हैं, लेकिन साथ एक ये बड़ी ज़रूरी है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को की तरफ, उनको बेहतरी की तरफ जाएं, बहुत ज़रूरी है। उनका इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी है। हमारे अरसा दराज से इनके साथ ताल्लुकात भी रहे हैं। हम किसी तरह भी नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं, मिसाल के तौर चीन के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, रूस के साथ। एक और चीज़ है कि रूस का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर बहुत इन्फ्लुएंस है। अरसा दराज से वहाँ पर रशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है और वो वहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो रूस के साथ है वो बड़ा मजबूत है। हम चाहते हैं नई मंडियाँ ढूंढनी, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो हमारे लिए हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो और मजबूत होगा जब ये वज़ीर आज़म साहब जब जो रूस जाएंगे, ये एक सिग्नल जाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कि भाई जो सबसे बड़ा मुल्क है जिसके साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात चले आ रहे हैं, वो एक सिग्नल मिलता है कि हाँ जी, हम अब आज़ादाना तरीके से पाकिस्तान के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो ट्रेड बढ़ाएंगे। और फिर जो आगे बात है वो एक बड़ा ज़रूरी है कि ये जो गैस पाइपलाइन है और दूसरी ट्रेड रिलेशंस हैं, हमें जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हो रहा है ये है कि हमारी ट्रेड जो एक ही तरफ सिर्फ वेस्ट की तरफ है, वो जो है उसमें अब इनलार्जमेंट की ज़रूरत है। वो इनलार्ज इसी तरह हो सकती है कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, उसमें ट्रेड रिलेशनशिप का कंटेंट बढ़ेगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को भी मैसेज मिलेगा, और फिर एक और चीज़ वो होगा तो फिर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और फिर वही एक है कि अगर वज़ीर आज़म साहब वापस आते हैं और ये एक प्रॉमिस लेकर आते हैं सदर बाइडेन की तरफ, सदर पुतिन की तरफ से, कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट होगी कि उनकी विजिट से जाहिर है वो जब यहाँ आएंगे तो आने से पहले, इतने बड़े मुल्क के सदर के आने से पहले कोई एग्रीमेंट्स होंगी, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसके ऊपर वहाँ पर बातचीत हुई होगी, वो पर यहाँ आके दस्तखत उस पर होंगे और एक मैसेज मिलेगा, स्पेशली हमारे जो ईस्टर्न नेबर इंडिया, उसको मैसेज मिलेगा कि भाई यहाँ पर रशिया जो है वो एक बैलेंस लाना चाहता है अपनी रिलेशनशिप में साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है नजमुल साकिब साहब, चीन और रूस, ये एक अफगानिस्तान के मामले को भी लेके आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा कि इस खित्ते को बग़ैर अमेरिका के असर रसूख के या इन्फ्लुएंस के वो ट्रांसफॉर्म किया जाए, जिस तरह चीन जो है वो BRI की शक्ल में ज़ाहिर है इक़्तिसादी फ़वाइद की तरफ देख रहा है, इक़्तिसादी मफादात की तरफ देख रहा है। आपने बिल्कुल ठीक तरफ और ठीक समत में इशारा किया जावेद, ये ऐसा ही है। देखिए, अफगानिस्तान के जो इकोनॉमिक और ट्रेड रूट्स हैं ना, जो कॉरिडोर्स हैं, उसका वो बेसिक वजह थी जिसकी वजह से कि अमेरिका बहादुर यहाँ पे आए और 20 साल रहे, उसकी सबको ज़रूरत है। सबसे पहले तो अफगानियों को ज़रूरत है जो वहाँ के रहने वाले हैं, उसके साथ जो उनके साथ रहने वाले यानी ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान आता है, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके बाद फिर यानी चाइना को भी ज़रूरत है। और उसका जो BRI आपने बात की है, जो कि उसके तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक में ये जो CPEC किस्म की चीज़ें जो है वो चल रही हैं, और वो बड़ी
तेजी के साथ जो है वो अपनी यानी इन रोड्स बना रहा है चाइना पूरी दुनिया में। अब ये है कि इसको करने के लिए कि अफगानिस्तान में फर्ज करें आपने कोई गैस की चीज शुरू करनी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई तेल की बात है, कोई आपने उसके यानी ट्रकों के जरिए कुछ माल इधर उधर लेके जाना है, सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जावेद जरूरी है कि वहां पे कम से कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हो, कम से कम इस तरह के हालात हो कि वहां पे किसी से जाके कोई बेस पे बैठ के टेबल पे बैठ के बात कर सके कि जी ये हम करने लगे हैं, आपका क्या ख्याल है। इस वक्त एज वी स्पीक तो काबुल में तो जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको तो कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, उनसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि ओस्लो में एक मीटिंग कर लेंगे, दोहा में एक मीटिंग कर लेंगे और उनको बताएंगे जी पहले आप ये शर्तें माने और फिर बात करेंगे। काबुल में जाके बाकायदा तौर पे बात करना कि जी ये हमारे इकोनॉमिक और ये है, इसकी अभी वो गुंजाइश नहीं है। लिहाजा चीन और रूस की ये बिल्कुल ख्वाहिश होगी, और उस पे मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि ये बाकायदा तौर पे एक रीजनल कंसेंसस की बात हुई थी सून आफ्टर 15 अगस्त जब ये तालिबान जो है काबुल पे यानी इनका तसल्लुत कायम हुआ है। अब उसमें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूं कि जिस तदब्बर और जिस यानी दूरअंदेशी के साथ इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख रहा है, उसमें फूंक फूंक के कदम उठा रहा है, वो बहुत ज्यादा यानी काबिल तहसीन और काबिल तारीफ इसलिए भी है कि उसमें एक वक्त में हमें मुकाबले बहुत सारे फ्रंट्स बहुत ज्यादा है। ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ यानी सेंट्रल एशिया में हमारे मसाइल, हमारे मिडिल ईस्ट में मसाइल, और फिर ये हम तो अफ्रीका की एंगेज अफ्रीका पॉलिसी शुरू कर चुके हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ नजर किए हुए है। उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और यानी वो कहते हैं ना एम्पिरिकली इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी मेरा ख्याल है ले लिया है, और वो क्या है कि हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, हमने ताल्लुकात सबके साथ ठीक रखने हैं, और आखिरी हद तक हम कोशिश करेंगे कि खासतौर पे अमेरिका और चाइना के दरमियान जब कोई बात आए तो हम उसमें किसी तरीके से न्यूट्रल ठहर सके। मुश्किल होगा लेकिन हमारी कोशिश है। अब जब रूस भी बीच में आ गया तो ये इतना बड़ा, पहले तो 2 हाथियों की बात थी, अब 3 हाथी हैं, और आपको मालूम है कि जब हाथियों की जंग होती है तो जो सफर करती है चीज वो घास सफर करती है। पाकिस्तान ठीक है कि एक न्यूक्लियर मुल्क है, लेकिन अगर आप पूरे ग्लोब को देखेंगे तो हमारा जो कद काठ है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, खासतौर पे उस वक्त जबकि हमारे इकोनॉमिक हालात, हमारा ये जो डेट सर्विसिंग का मसला, हमारे फिस्कल प्रॉब्लम जिनकी वजह से कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं, तो लिहाजा पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, हम प्राइम मिनिस्टर को और सारी की सारी जो हमारी कौम है उसको ये देखना है, उसको ये सोचना है कि अफगानिस्तान का मसला या हिंदुस्तान का मसला या जम्मू और कश्मीर का मसला, खित्ते की सूरत हाल, अमेरिका तो पता नहीं हजारों मील दूर है, रूस भी बहुत दूर है, ये हमारा मसला है, और इसके लिए हमने कोशिश करते रहना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हों, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात गहरे हों। उसका हमें फायदा इंडिया के जिम्मे में भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इस वक्त आपने बड़ी अच्छी बात की अपने इंट्रो में, जो कि मैं चाहूंगा कि उसको जरा दोहराया जाए कि वजीर आजम पाकिस्तान का ये दौरा इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में या मॉस्को में इसकी नजर नहीं है, दुनिया भर की नजर है, और दुनिया भर में इंडिया को सबसे पहले रखें। वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि ये कहीं डायमेंशन जो है, अगर रूस और पाकिस्तान साथ आ जाते हैं तो रूस और इंडिया के हालात पे बड़ा बुरा फर्क पड़ेगा जो पाकिस्तान के हक में है। लिहाजा इस दौरे का कामयाब होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब और शाहिद कियानी साहब, साबिक सफीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और दोनों का यही कहना था कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर जो अपने पत्ते हैं वो इंतहाई एहतियात के साथ और इंतहाई दानिशमंदी से खेल रहा है। और पाकिस्तान जब एक ऐसे वक्त में कि ख़ित्ते में एक तनाव की कैफियत बनती जा रही है, पाकिस्तान
बहुत संभल के आगे चल रहा है और पाकिस्तान खित्ते में अपने ताल्लुकात को तवाज़ुन में रखने की कोशिश कर रहा है और अब तक इसमें कामयाब भी हुआ है। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक महफूज तरीन मुल्क है। आज हम आपको एक ऐसी खुसूसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं सिंध के हवाले से। सिंध का इलाका है उडेरो लाल, जहाँ पर एक दरगाह मौजूद है और ये दरगाह उडेरो लाल ही की दरगाह है। इसके इहाते के अंदर एक मस्जिद भी है और मंदिर भी है, जहाँ एक ज़माने यानी बरसा बरस से मुसलमान और हिंदू इकट्ठे एक अच्छे माहौल में पुरअमन तरीक़े के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इसलिए भी दुनिया को बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का आइन और हमारा मज़हब इस्लाम भी यही कहता है कि अक़लियतों को उनके जायज़ हुकूक दिए जाने चाहिए। अली असगर अरबाब जो हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, उन्होंने इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। ये हिंदू इसके मुरीद हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। सिंध के जिला मटियारी में हैदराबाद से 1 घंटे की मुसाफत पर उडेरो लाल का शहर वाक़ है। ये शहर एक बुजुर्ग हस्ती के नाम से मंसूब है, जिसके बारे में मुसलमान इसे इस्लाम का पैरोकार जबकि हिंदू इसे भगवान का रूप समझते हैं, जिसे मकामी जुबान में ओतार कहा जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक मुगलिया दौर में ये बुजुर्ग अपनी करामात के बायस मशहूर थे, जो नसरपुर में अपने पैदाइशी मकाम से यहाँ पहुँचे और उडेरो लाल के नाम से शोहरत हासिल की। यहाँ पहुँचने पर 4 मुसलमान भाई उनकी करामात से बेइंतहा मुतासिर हुए और इस बुजुर्ग को क़याम के लिए अपनी ज़मीन दी, जबकि वो खुद इस दरवेश के खिदमतगार बन गए। मुजावर हूँ, मुतवली हूँ, वारिदार हूँ, गादी नशीन नहीं हूँ। गादी इसकी है ही नहीं। डाडे पढ़ डाडे। उसने बोला ये मुसलमान था, नाम इसका शेख मोहम्मद ताहिर है, मेरे पास आया था, मैं इसको ज़मीन दी थी। हिंदू उसके मुरीद हैं। इस बुजुर्ग की करामात से मुसलमान और हिंदू दोनों बड़े मुतासिर थे, जिसके बायस किले नुमा चौदीवारी के अहाते में उडेरो लाल के मकबरे के दाएं तरफ मस्जिद और बाएं तरफ मंदिर तामीर किया गया, जो आज तक कायम है। उडेरो लाल की मज़ार पर मुसलमान इस बुजुर्ग के लिए फातह ख्वानी करते हैं, जबकि हिंदू अपने मजहबी अंदाज से इस बुजुर्ग से अकीदत का इजहार करते हैं। गुज़श्ता कई साल से मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और मज़ार पर आने वाले और मकामी लोग नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद के अंदर 5 वक्त नमाज अदा की जाती है और जुम्मा भी होता है और ईदैन भी पढ़ी जाती हैं। दरगाह के दूसरी तरफ मंदिर और जोतगाह है, जहां आने वाले हिंदू दरगाह पर हाजिरी देने के बाद यहां पूजा पाठ करते हैं। जब लालसा इधर आया था 1070 साल हुए, उसी दौर की है, इसको कभी बुझाते नहीं है। अखंड ज्योत है, ये हमारे लिए एक मजहब में बहुत बड़ी चीज़ है। और 1007 में उडेरो लाल साहब का जन्म नसरपुर में हुआ था। उडेरो लाल साहब जल अवतार है, हिंदू का रखपाल है, जड़े रखपाल है, हिंदू मजहब में उनकी बड़ी अहमियत है। हर रोज शाम के वक्त हिंदू बिरादरी की जानिब से दरगाह के आते में धमाल का बंदोबस्त किया जाता है। गुज़श्ता कई साल से इस दरगाह पर मुसलमान और हिंदू पुरअमन माहौल में मोहब्बत और मजहबी हमआंगी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। दरगाह की देखभाल हिंदू बिरादरी की जानिब से की जाती है, जबकि इस बुजुर्ग के खिदमतकार, जिसे मकामी जुबान में मुजावर कहा जाता है, वो आज भी मुसलमान हैं, जो कई पुश्तों से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। उडेरो लाल एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती है जिसने मुसलमान और हिंदू पैरोकारों को जोड़ रखा है, जो इस बुजुर्ग की खिदमत को अपने लिए एजाज समझते हैं। दरिया बादशाह साईं, इनकी असल हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं है। हमारे को शेख का लक़ब जो दिया हुआ है, हम बायकास जहे जाएं। हमारे को शेख का लक़ब दिया हुआ इस बुजुर्ग ने दिया है। मजहबी आज़ादिया में इधर आप मंदिर भी देख रहे हैं, मस्जिद भी देख रहे हैं, हमें कोई उनसे कोई शिकायत है ही नहीं। हुकूमत का तावन हमारे साथ बिल्कुल
और हम बहुत खुश है इधर। हमारे को आज़ादी है, हम अपने हिसाब से आते हैं, हम अपने हिसाब से इबादत वगैरह करते हैं। यहाँ पे मस्जिद भी साथ में ही है और मंदिर भी है। इस दरगाह पर हर साल गंदम की कटाई के दिनों में मेला लगाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया के दीगर ममालिक से बड़ी तादाद में हिंदू यात्री इस मेले में शरीक होते हैं। यूं पाकिस्तान में उडेरोलाल का शहर आज भी प्यार, अमन, बर्दाश्त और मजहबी हम आहंगी की एक रोशन मिसाल है। रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अली असगर अरबाब। बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब साहब, ये एक बहुत अहम तरीन रिपोर्ट आपने आज दुनिया के सामने पेश की है। बताइए, आप वहाँ गए, आपने ये रिपोर्ट बनाई, क्या माहौल देखते हैं और अरसे दराज से यहाँ पर मुसलमान और हिंदू बड़े इत्तेफाक के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, ये मनाजिर कुछ अपने अल्फाज में बयान कीजिए। देखिए, सिंध का शहर उडेरोलाल जो मटियारी ज़िले में वाक़ है और हैदराबाद से कोई 1 घंटे की मुसाफत पर है। ये एक ऐसी जगह है कि एक चौदीवारी है, उसके अंदर एक बुज़ुर्ग जिसका नाम उडेरोलाल है, उसकी दरगाह है। अब बुज़ुर्ग जो है, इसके बारे में मुसलमान ये कहते हैं कि ये एक इस्लाम का पैरोकार था, जबकि जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि ये जो है हिंदुइज़्म का पैरोकार था और उनकी एक अपने मज़हब में एक ख़ासी अहमियत है। और दिलचस्प बात यह है कि कई साल से जो है इसी दरगाह के आते में मुसलमान भी उसी दरगाह पे हाज़िर देते हैं और उसके बाद वो नमाज भी अदा करते हैं अमन और सुकून के साथ। और इसी तरह वो उस मस्जिद के जो दरगाह है उसके एक तरफ मंदिर वाक़ है और दरगाह पर हाज़िरी देने के बाद जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने मंदिर में चले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद वो जो है बाहर निकल जाते हैं उस दरगाह के आते से एक पुरअमन माहौल में। और कई सालों से ये सिलसिला जारी है। तो आप देखें कि ये एक ऐसा माहौल है जिसमें मुसलमान और हिंदू मिलकर मजहबी हमांगी के साथ जो है वो अपना वक्त गुजार रहे हैं और गुज़श्ता कई साल से आज तक कोई ऐसा वाक़या भी यहाँ रोनमा नहीं हुआ है। पुरअमन माहौल में रहते हैं, बर्दाश्त के साथ रहते हैं, मजहबी हमांगी के साथ रहते हैं और ये एक मिसाली शहर है पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर उडेरोलाल में। तो मैं आपको बता चलूँ कि अगर हम भारत का मिसाल देखें, जहाँ भारत में जो ये दावा करता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है और वहाँ एक जमहूरियत है, मगर जो मिनार्टीज़ के साथ भारत में हो रहा है, ख़ास तौर पर उसमें मुसलमान सर फहरिस्त हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ जो रियासती इदारे और हुकूमत जो कर रही है, RSS के जो कारकुन हैं वो कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में भारत का एक जो नाम नहाद चेहरा है कि वो एक सेकुलर मुल्क है, वो पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर होता है। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में हमेशा अक़लियतों की जो है बड़ी रिस्पेक्ट है, अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है और उसकी मिसाल आप इसी एक चौदीवारी के अंदर देख सकते हैं कि मस्जिद भी हो और मंदिर भी हो और एक दरगाह हो और सारे लोग अमन अमान मजहबी हमांगी के साथ ज़िंदगी बसर करें। और पाकिस्तान में जब भी अगर ऐसा किसी भी कोने में, दूर दराज इलाके में जब भी ऐसा कोई अगर अक़लियतों के साथ कोई अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के लोग उन माइनॉरिटीज़ के साथ, उन अक़लियतों के साथ खड़े हुए हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ हमें एक्शन भी हुआ है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक पुरअमन रियासत है, पुरअमन मुल्क है, जहाँ पर हिंदू हो, ईसाई हो या किसी भी मज़हब से सिख हो। आप देखें पाकिस्तान ने जो करतारपुर राहदारी के ज़रिए जो एक मिसाल कायम की दुनिया में कि हर साल जो सिख यात्री यहाँ पर आते हैं, कितनी अदब एहतराम के साथ और पूरा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनको जो है मौका दिया जाता है कि वो अपनी मजहबी इबादत गाहों का जा सकें और वहाँ अपनी इबादत कर सकें। इसी तरह भारत से जब हिंदू यात्री यहाँ पर भी आते हैं तो उनको भी भरपूर तरह से रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक पुरअमन मुल्क है। और ये यकीनन अली असगर अरबाब साहब उन कुव्वतों के मुंह पर भी तमाचा है जो इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को वो हुकूक हासिल नहीं है। ये एक जीता जागता सबूत है उन कुव्वतों के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं।
बिल्कुल आपने जावेद साहब बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की ये तो एक मिसाली जगह आप कह सकते हैं, मिसाली शहर कह सकते हैं कि कई साल से जो है ये लोग आ रहे हैं। और उसमें आपको सब दिलचस्प बात बताऊं कि हर साल यहाँ पर जब मेला लगाया जाता है तो उस वक्त जो है कई बड़ी तादाद में जो हिंदू यात्री भारत से यहाँ पर आते हैं, उनको भी न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है बल्कि उनको जो है वो यहाँ पर आके उन रसूमात में, मेले की जो रसूमात होती हैं उसमें शिरकत करते हैं और इसी मंदिर में अपनी इबादत भी करते हैं। तो ये तो एक मिसाली शहर है। उसके बरक्स अगर भारत में देखें कि एक तालिबा ने जिस तरह एक निकाब के लिए पहना हुआ था, तो जिस तरह उस पर जो है वो धावा बोला गया, एक हुजूम ने जिस तरह तशद्दुद करने की कोशिश की, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस तरह से अक़लियतों के साथ, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो है उसको टारगेट कर रहा है। रियासती इदारे उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि भारत की जो अदालतें हैं वो भी मुझे लग रहा है कि आज़ाद नहीं है, क्योंकि अदालतों को अगर कभी भी ऐसा फैसला दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो बच्चियां या जो स्कूल में जाएं तो निकाब जो है, जो हिजाब है, उसको उतार के फिर अंदर जाएं। ये तो एक ऐसा मिसाल है कि जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं होती। हालांकि इसमें एक स्टे मिलना चाहिए था कि जिस तरह की सूरत हाल है उसी तरह बरकरार रखी जाए। ये तो कानूनी माहिरीन के लिए भी एक मतलब अफसोसनाक बात है। तो पाकिस्तान जो है अक़लियतों के लिए एक पुरअमन मुल्क है, जबकि इसके साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, जहाँ पर अक़लियतों के साथ अक़लियती जो बरादरी है, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, या जो भी वहाँ अक़लियत रहती है, उसके साथ ज़्यादतियाँ जिस तरह रियासती इदारों की तरफ से हुकूमत के छतरी के नीचे हो रही हैं, वो मतलब अफसोसनाक कह सकते हैं। और इसी इक़दाम से आपको बताऊं कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह भारतीय रियासती दहशतगर्दी इस वक्त जारी है और तमाम जो मकबूजा कश्मीर मुसलमान हैं, कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, वो भी आज जिस अजियत और जिस जुल्म और बर्बरत का मुकाबला कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। मेरे ख्याल में इसी के बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान तो अक़लियतों के लिए एक महफूज पनाहगाह है। हर साल कितने आप देखते हैं कि सिख यात्री, हिंदू यात्री यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान का विज़िट करते हैं और एक अच्छा मैसेज लेके जाते हैं और अच्छा जो एक पैगाम लेके जाते हैं, मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, मजहबी हम आहंगी का, रवादारी का, बर्दाश्त का। जबकि इसके बरक्स भारत में अगर देखा जाए तो आपको जो सिलसिला है बिल्कुल एक अलग थलग और ऐसा लगता है कि भारत में अक़लियतों के लिए रहना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अली असगर अरबाब साहब। आप यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, मैसेज है दुनिया को जा रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके हुकूक, उनके जो जायज़ हुकूक हैं वो दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली असगर अरबाब, इतनी अहम रिपोर्ट पेश करने पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम सच के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।